उनका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा भाई भाई, डोंट वरी. We are trying our level best to complete it as fast as possible so that we can start with your 12th standard syllabus from the next month. Let's see कैसे होता है cover. Yes, Pragya, you want to say something? चलो कुछ नहीं, हाथ नीचे कर लिया उसने. Okay, shall we start now? क्योंकि आ गए मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे बच्चे आ गए है, कोई कोई अभी तक नहीं पहुंचा है, पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, हौले हौले सब लोग आ जाएंगे. Anyway, so we are going to start with the next part of the topic, that is the complex permanent tissue. ठीक है, तो now complex permanent tissue में as we all know that there are two types of permanent tissues, that is अच्छा ये हम लोगों ने शायद पढ़ा भी था, है ना. They are basically the heterogeneous in nature. Heterogeneous in nature का मतलब क्या आता है? Having different size, shape, structure and function, and different types of cells are carrying out similar set of functions. So that is why it is known as a complex permanent tissue. Complex इसके लिए बोला गया है because more than one type of cell is going to form this tissue. इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं complex tissue, right? And it is permanent because it has lost the ability to divide, and it has taken up its own normal function. मतलब it has taken its function so that the size and shape is also fixed, and accordingly it is working, right? Two types of tissues are there. One is known as the xylem and the other one is known as phloem. ये slide पे हम लोग last time रुके थे. Now we need to understand all these tissues one by one. सबसे पहला हम लोग देखेंगे xylem, which is also known as the wood. ठीक है, जो लकड़ी वुड जिसको हम लोग बोलते हैं ना, so that is nothing but the xylem, or also called as the hadrome. Hadrome मतलब water, the one which is known to carry water ना, इसके लिए hadrome ऐसा नाम दिया गया उसका. Now, xylem basically is responsible for transport of water and minerals. अच्छा, water and minerals together is known as the cell sap. Okay, it is called as the cell sap. So it is known to carry cell sap, that is water, which are water along with the minerals which are dissolved in the water, and of course then it's going to support, provide mechanical strength to the plant body, जो generally होता है in the form of secondary growths. ठीक है, so generally they will have the second. अच्छा, जितने भी plants में secondary growths होते हैं ना, majority of the secondary growths are basically through the xylem only. यानी xylem का ही modification होता है, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे secondary growth भी कैसे होते हैं और क्या होते हैं. ठीक है, now there are four different types of cells are there, and thus there are four different types of tissues which are formed in the xylem. सबसे पहला, the first one is known as the tracheids. xylem tracheids उसको बोलते हैं, या फिर ट्रेकियरी एलिमेंट, या फिर ट्रेकिया ऐसा बोला गया उसको. उसके बाद tracheids will have the a type of cells around it called as the xylem vessels or trachea, another important. So tracheids or tracheiry elements, xylem vessels or trachea. ठीक है, so ये दो स्ट्रक्चर्स हो गए. उसके बाद फिर और दो टिश्यूज आते हैं. One is known as the xylem fibers and the other one is known as xylem parenchyma. उसमें से अपने को पता है फाइबर का काम क्या रहेगा. What is the function of the fiber? It's a fiber, so naturally it will provide what? Support. Yes, it will provide the strength. Correct. मेरी वॉइस लो आ रही है क्या? Sir. No, sir. परफेक्ट है ना? हाँ, नहीं, मुझे प्रज्ञा ने मैसेज भेजा कि वॉइस लो है, so that's why I'm asking. Am I audible? थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है क्या? No, sir, it's clear. It's clear ना? Okay, fine, चलो ठीक है. So xylem fibers will provide strength, will provide structural stability, whereas xylem parenchyma का काम क्या रहेगा? The same as what we have, that is, yes, parenchyma का काम क्या रहेगा? Storage ना? Storage. तो मतलब ये दो टिश्यू का तो काम हो गया. अब ये दोनों का काम क्या होता है? तो ये दोनों का काम होता है to transport or to carry the cells, है ना, वाटर अलॉन्ग विद द मिनरल्स. लेकिन ट्रैकिड्स क्या काम करेंगे और वेसल्स क्या काम करेंगे, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. यस, करेक्ट दिया, कंडक्शन ऑफ द वाटर अलॉन्ग विद द मिनरल्स. ठीक है, सो टिपिकल ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द xylem विल लुक समथिंग लाइक दिस. अभी कुछ भी ड्रॉ करो मत, जब मैं बोलूंगा तब आप करना. ओके, नाउ सबसे पहले tracheids. Now we need to understand the type of cells it has. किस तरीके के cells होते हैं. Now the cells basically will be seen as elongated and tubular cells. ऐसे tubular cells होते हैं, and all the cells are going to be the dead cells. Okay, so this particular tissue in xylem, these cells are going to be the dead cells, and they are tapering at both the ends.
मतलब ऐसे पॉइंटेड हो जाते हैं एट बोथ दी एंड्स, ठीक है. सो दैट इज द स्ट्रक्चर विच वी सी फॉर द xylem tracheids. So they are dead at maturity, and this is basically because of the presence of the lignin. और rather actually ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, ये due to की जगह आप क्या करो, they are dead at maturity because they need to transport the water, so they need to form a cavity, and then because they are dead, therefore the cell wall will be lignified. तो इनका जो सेल वॉल होता है ना, उसमें सेल्यूलोज और पेक्टिन की जगह क्या आ जाता है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की जगह आ जाता है लिग्निन. ओके, सो द सेल वॉल्स आर गोइंग टू बी लिग्निफाइड. यहां तक ठीक? यस द बॉयज एंड द गर्ल्स. Yes. कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो पूछ लेना. हाँ, यस प्रज्ञा. Sir, please show previous slide. ये वाला कौन सा प्रीवियस स्लाइड चाहिए आपको? दिस वन? Yes, sir. डन. Done, sir. हाँ, एक मिनट बोलता हूँ मैं. हाँ, हेलो सानिका, सानिका घुड़के. अच्छा, सो द सेल्स आर गोइंग टू बी, या सानिका घुड़के को माइक चाहिए. हाथ ऊपर करो ना भाई, अपना हाथ ऊपर कीजिए सानिका, फिर मैं आपको माइक का ऑप्शन देता हूँ. रेज योर हैंड. सानिका किधर है? हाँ, हो गया. Okay, so basically the cells are going to be elongated and tubular, and from inside they are going to be empty, hollow, because the cells here are dead and they are tapering at both the ends. And as I said, the cells are dead at maturity, and because of the death of the cell wall or the cellulose will be replaced by a substance known as lignin. So we understand that the cell wall here becomes lignified. So rather than being made up of cellulose and pectin, here the cell wall will be made up of lignin. इतना याद रखो, ठीक है. So ये एक basic difference आएगा, and this is how we understand the concept. ठीक है. अमन समझा अभी आपको ये lignin वाला? Yes, sir. So lignin basically is going to replace the cellulose. Why? Because the cells are dead. ठीक है. So ये concept हो गया. Now they are considered as the main water conducting elements in case of pteridophytes. याद है आप लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा था क्रिप्टोगैम्स एंड फिनोगैम्स. तो क्रिप्टोगैम्स का ये थर्ड टाइप, दैट इज टेरिडोफाइट्स, थर्ड क्लास. And then it is also found in the gymnosperms, but usually they are not the main water conducting elements in the angiosperms. Okay, तो मतलब एंजियोस्पर्म्स में क्या रहेगा, तो एंजियोस्पर्म्स में दूसरा रहेगा, that is known as xylem vessels or also known as the trachea. Good गौरव, ठीक है. So that is how tracheids will be seen. ये हो गया लिख के. So they are mainly found in what? They are mainly found in the pteridophytes and the gymnosperms. इसमें आपको ये मिलेगा. Now the thickening of the tracheids. Tracheids के thickening कैसे होते हैं? So if we take a longitudinal section of the xylem, then you will find that the thickening of this will be in the form of ring. मतलब ये सेल वॉल है जो ऐसे रिंग फॉर्म में बन गया है. हम लोग 3 डायमेंशनल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. आपको इमेजिन करना है कि ये पूरा सेल वॉल ऐसा है, बराबर है. So this the thickening of the cell wall, that is deposition of the lignin, can be in the form of rings. So we call this as annular. ठीक है. उसके बाद it can be even in the form of spring or helix. जैसे DNA होता है ना वैसा. So it is known as spiral, like a spring. तो ये फॉर्म में भी डिपोजिशन पॉसिबल है लिग्निन का. Then it can be in the form of network like structure, so called as the reticulate type of a thickening, or it can be seen in the form of a ladder like structure. जैसे ladder जैसा दिख रहा है, so we call this as scalariform, क्योंकि ये thickening है ना ऐसे ladder की तरह दिखता है. And last but not the least, in the form of small pores, so we call this as pitted. यानी ऐसे छोटे छोटे पोर्स और खड्डे रहेंगे लिग्निन के ऊपर, ठीक है. और लिग्निन ये सेल वॉल, लिग्निन जो सेल वॉल बना रहा है उसके ऊपर, ठीक है. सो दिस इज हाउ these are all the thickenings of the tracheids which we observe. So these are the type of thickening depending, there are various types of plants, pteridophytes as well as the gymnosperms. तो उसमें आपको depending upon the type of plant you will see the thickening.
ये थिकनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इसको सिर्फ याद रखना, यू डू नॉट हैव एनी एग्जांपल्स टू स्टडी। ओके, सिर्फ आपको ये याद रखना है। नाउ इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ दिस आल्सो। ठीक है, इसको थोड़ा सा लाइन डायग्राम में ड्रॉ कैसे करोगे ड्रॉ, जैसे मैंने ये निकाल लिया, करेक्ट, एक ऐसा लाइन निकाला, फिर मैंने ऐसे एन्युलर रिंग्स निकाल दिए और उसको नाम दे दिया एन्युलर, सिंपल। फिर मैंने और एक ऐसा लाइन निकाला और फिर उसको मैंने इस तरीके से निकाल दिया, सो दिस इज स्पाइरल। बस ऐसे निकालो फटाफट, देखो 1 मिनट में हो जाएगा पूरा। क्लियर? चलो ये ड्रॉ करो और उसके साथ ये सारे नाम लिख के रखो। हाउ डू दे लुक लाइक एंड व्हाट इज देयर नेम, प्लीज डू दैट। पानी बन हो गया? सब लोगों को 12th की इतनी घाई क्यों है? हो जाएगा चालू, पहले ये खत्म हो जाने दो। 11th के मेन टॉपिक्स कुछ बाकी है अपने, सो दैट वी नीड टू कंप्लीट फर्स्ट। चलो, shall we start next part? Yes, sir. Good. So these are all the different types of thickenings which we have, right? Okay. Now, there is no summer vacation. Somebody is Pragya is asking me, summer vacation नहीं है आप लोगों को, कुछ भी plan मत करना. No holidays. So कुछ भी plan मत करना unnecessary. Okay. Next one is the xylem vessels, which is also known as the trachea. पहला वाला ट्रैकियरी एलिमेंट्स, दिस इज ट्रैकिया। अभी देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है और इसका टाइप ऑफ सेल्स भी थोड़ा सा अलग रहेंगे। सो अगेन इलोंगेटेड ट्यूबुलर सेल्स, बट दे आर नॉट टेपरिंग एट एंड। एंड पे टेपरिंग इनका नहीं हो रहा है। सो देयर आर मेनी वेसल एलिमेंट्स व्हिच आर प्लेस्ड एंड टू एंड, एक दूसरे के ऊपर ऐसा आ जाता है, एंड दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, and they will have a transverse walls which are seen to be perforated, and the walls are lignified but relatively less thick। मतलब xylem tracheids जो थे ना वो ज्यादा थिक रहते हैं, xylem vessel का जो सेल वॉल रहता है इट्स गोइंग टू बी कंपैरेटिवली लेस थिक, whereas it is wider than the tracheids। tracheids का जो एलिमेंट होता है, ट्यूब होता है, वो एकदम छोटा रहता है, ये बहुत बड़ा रहता है। so lumen or the cavity is going to be more wider than the tracheids। So these are the important properties or characters, ठीक है, characteristics of the xylem vessel। okay? और वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज होना चालू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू हैव दिस पर्टिकुलर वन वेसल लाइक दिस, इसके ऊपर ये दूसरा आना चालू हो जाएगा लाइक दिस, फिर इसके ऊपर ये तीसरा आएगा लाइक दिस, फिर इसके ऊपर ये चौथा। सो दे आर ऑल अरेंज्ड एंड टू एंड लाइक दिस। एंड रिमेंबर साइड वॉल्स आर लिग्निफाइड, बराबर है, साइड के वॉल्स लिग्निफाइड है, बट इफ यू सी द एंड पोर्शन, यानी ये वाला रीजन और ये वाला रीजन जो रहता है ना, दैट हैज कंप्लीटली लॉस्ट द लिग्निन एंड सेल वॉल, so that it starts becoming a tube like structure which helps to carry water in the upward direction। मतलब इनके जो एंड वॉल्स रहते हैं ना, दे आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड।
क्योंकि उसकी वजह से फिर ऐसे ट्यूब बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, लिखो इसको। हो गया? Yes, sir. No, sir. So, Yes. So even these are dead cells, right? Yes, these are also dead cells. मतलब जाइलम में एक ही सेल होता है जो लिविंग होता है, कौन सा रहेगा? Xylem parenchyma. Very good. Xylem parenchyma. So parenchymatous cells are going to be good, Gaurav. Parenchyma cells are going to be living. बाकी सारे cells इसके dead रहते हैं. Dead रहेंगे तो ही वो cavities बना पाएंगे ना. If the cells are not dead, then the cavities will not be formed. Finished? चलो आगे बढ़े. हाँ पीयूष, पता है मुझे, ये ऑलरेडी मैं एड्रेस कर चुका हूँ ये इशू. So I know which are the chapters which are not taught to the new batch. So accordingly I am going to make the paper. So you don't worry. In the meantime आप एटलीस्ट मेरे जो वीडियोस है जो बनाए हुए हैं, जो बच्चों के साथ स्टूडेंट्स के साथ लिया था, वो देख लो एक बार, ताकि थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाए. ओके पीयूष, गुड. चलो तो ट्रेकिया और वेसल्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. नाउ वेसल्स इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म्स. जो मैंने बताया था आपको अभी, दैट xylem tracheids are not found in the angiosperms, but then they are found in the pteridophytes and the gymnosperms, whereas xylem vessels are found in the angiosperms. ठीक है, pteridophytes और gymnosperms में xylem vessels is absent, नहीं रहेगा. करेक्ट. सो मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में जनरली दे विल हैव xylem vessel as an important tissue which is known to carry or conduct the water. Okay. Now there are two types of trachea. मतलब vessels दो टाइप के रहेंगे. कौन कौन से? सब. अच्छा क्या चाहिए? ये वाला स्लाइड. आदित्य. ओके. ऐश्वर्या आ गई है. Sir, but the angiosperms will have the tracheids, no? क्या 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 क्या? The angiosperms have vessels or trachea as the main Only element. vessels. Only vessels. No tracheids. Okay, sir. कॉम्प्रोमाइज ही हो जाते हैं ट्रैकियरी एलिमेंट्स, क्योंकि इसका साइज ही बहुत बड़ा होता है. ठीक है, चलो आगे बढ़े. Now trachea, that is the xylem vessels, will be of two type. कौन कौन से? तो सबसे पहला आता है that's called as the protoxylem and the second one is known as the metaxylem. Proto मतलब primitive, primary, इसके लिए उसको बोलते हैं protoxylem. So it is the first form xylem and metaxylem is the secondary, that is later form xylem. तो सबसे पहले protoxylem बनेगा, फिर धीरे 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 वो बड़ा हो जाएगा and then it's going to form the metaxylem. Now protoxylem will be made up of small xylem vessels, whereas metaxylem will be made up of comparatively larger xylem vessels. तो इनका साइज बहुत बड़ा होता है. ओके, एक मिनट फिर से हाथ ऊपर हुआ. यस प्रज्ञा. सर ट्रैकिया के 2 टाइप है. हाँ, ट्रैकिया मतलब कौन? वेसल्स. ओके सर. ठीक है. So this will be made up of smaller xylem vessels, whereas this will be made up of larger xylem vessels. Protoxylem will show annular और spiral thickening. जो हम लोगों ने पढ़ा था ना पहले, thickenings जो हम लोगों ने ट्रैकियरी एलिमेंट्स में पढ़ा था, तो प्रोटोजाइलम में जनरली annular मतलब ऐसे रिंग जैसे, या फिर स्पाइरल मतलब लाइक अ स्प्रिंग, लाइक दिस.
will be present, whereas this will show reticulate scalariform or pitted thickness. Reticulate मतलब network like, बराबर है. Scalariform का मतलब ladder like, है ना. Pitted मतलब having pores, correct? So the vessel will have the pores. So that's the basic difference between these two elements, that is protoxylem and metaxylem. Okay, so protoxylem is the primitive, यानी सबसे immature जिसको बोलते हैं हम लोग, या फिर young xylem बोलते हैं. So this is protoxylem, और जैसे जैसे xylem old होते जाएगा we call that as metaxylem. Please write this down. Done? Okay. Chalo, Madhurani is saying done, sir. Fine. Now, next, the next tissue which we have, yes, protoxylem will develop into metaxylem. यानी अलग अलग रहता है, मतलब protoxylem present रहेगा, metaxylem भी present रहेगा. Protoxylem will now develop into metaxylem. जैसे ये develop हो जाएगा, नया वाला protoxylem बनते रहेगा. मतलब plant के अंदर आपको दोनों भी मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटोजाइलम मिलेगा या मेटाजाइलम, दोनों भी मिलेगा, बट प्रोटोजाइलम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मेटाजाइलम. समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन नया प्रोटोजाइलम बनते ही रहेगा वो, और वो कहां से बनेगा? फ्रॉम द जाइलम टिश्यू ओनली, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज द जाइलम फाइबर्स. तो ये अपने को पता ही है, जाइलम फाइबर्स बेसिकली दे विल बी मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस इलोंगेटेड सेल्स, क्योंकि फाइबर्स है ना, तो स्क्लेरेनकाइमा का ही बनेगा, तो उसमें अलग कुछ है ही नहीं. जैसा हम लोगों ने स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा, बस वही कैरेक्टर्स जाइलम फाइबर्स के हैं. सो स्पिंडल शेप्ड सेल्स आर प्रेजेंट व्हिच आर टेपरिंग एट बोथ द एंड्स, which is also called as the wood fibers, and they will show lignified walls, okay, and are essential for the mechanical support. Why lignified walls? Because the cells of this tissue are dead, and as the cells are dead, therefore the cell wall is going to be lignified. Whereas xylem parenchyma, तो ये क्या रहेगा? तो xylem parenchyma के all the cells are going to be living, so they are called as parenchymatous cells. ठीक है, so they are responsible for lateral conduction of minerals, side to side by side conduction of the minerals, यानी आजू बाजू वाले टिश्यूज को मिनरल्स पहुंचाने का काम करेगा xylem parenchyma, also known to store the food. And here the cells are living cells. ठीक है, तो ये बस ये दोनों है xylem vessels and xylem fibers and xylem parenchyma. That's it. So this will complete your xylem. Done? आगे बढ़े. हो गया तो बोलो मुझे, टाइप करो. Done, sir. Yes, yes, I'm waiting. जिनका हो गया वो सिर्फ टाइप करो या फिर बोल दो मुझे कि हो गया है. Okay. Done, sir. Chalo, good. Shall we now move ahead? चलो, next part. So this is about the xylem. Xylem के बाद next issue comes, that's called as the phloem. Okay, phloem का काम क्या रहेगा? So phloem is basically a tissue which is known to carry food in both the direction, upward as well as downward direction.
So the phloem, which is also known as the bast or also called as the leptome, the other name for the phloem. ठीक है, जैसे वहां पे हाइड्रोम या फिर वुड ऐसे हमने नाम दिया था जाइलम को, वैसे phloem का नाम है बास्ट या फिर लेप्टोम. Now, as I said, it is known to conduct the prepared organic food material to different parts of the plant body. यानी दोनों upward direction as well as downward direction, whereas xylem carries water only, that is cell sap only in the upward direction, whereas the food will be carried in both the direction, upward as well as the downward direction. There are 4 types of cells which are there. Same जैसा हमने xylem में पढ़ा था वैसे 4 टाइप रहेंगे. सबसे पहला आता है that's called as the sieve cells और sieve tubes उनको बोलते हैं हम लोग. Sieve tubes will get the support from a type of cells here called as the companion cells. और बचे हुए 2 cells जैसा xylem में था वैसे ही रहेंगे. कौन से? xylem phloem fibers and phloem parenchyma. ठीक है, लेकिन अगर आप अरेंजमेंट अगर ये टिश्यू का देखते हो तो वो थोड़ा सा अलग है. Xylem का अरेंजमेंट थोड़ा अलग था, so this is a typical TS of the phloem, और phloem का ये अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग है. As you can see here, companion cells are showing the nucleus, मतलब companion cells will be living cells. Similarly, parenchyma cells are also going to be living cells. मतलब यहाँ पे phloem में 2 टाइप का cells है जो living रहेगा. कौन सा? Companion cells and parenchyma cells. But sieve tubes and fibers are going to be a dead cell. लेकिन sieve tubes are going to be important. क्यों? क्योंकि sieve tube elements are the one which are responsible for transport of the food material, जो food material को carry करने का काम करते हैं. ठीक है, so that is the work done by them. क्या हुआ? बोलो. Sir, previous slide. हाँ. Yes, correct. Diya, that's called as the translocation. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अभी तक हुआ नहीं है ना अपना? No, sir. Done? Yes, Yeah. sir. Lohita. Yes, sir. Okay, now how do we describe the sieve cells here? Again, they will show elongated, they are elongated tubular cells. Okay, so they are going to be elongated and tubular cells tapering at both the ends, and most importantly, they will be considered, they are called as the main food conducting tissues in case of pteridophytes, gymnosperms. Okay, so they are the main conducting tissues, food conducting systems in case of, that is sieve cells. ये हो गए हमारे sieve cells which are responsible for this, whereas there is one more important structure called as the sieve tube elements. पहला वाला कौन सा था? पहला वाला था sieve cells, मतलब ये cells है जो एक दूसरे के साथ arrange रहेगा, so they will have many small pores and they are considered as the main conducting tissue of gymnosperms and pteridophytes. लेकिन एंजियोस्पर्म में ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग रहता है. ठीक है, now are sieve cells analogous to tracheids? हाँ, I mean similar. You can say tracheary elements या फिर tracheids के जैसा ही रहेगा वो. या सिर्फ tracheids का काम क्या रहेगा? To transport or carry water. इसका काम रहता है to carry the food. But this is again found where? This is found again in the pteridophytes and gymnosperms. लेकिन angiosperm में structure थोड़ा बदल जाता है. It is called as the sieve tube elements. ये वाला जो है ना, ये companion cell है. ठीक है, so this is known as the sieve tube element. Now what are these? These are elongated tubular conducting tissues or channels, and they have the sieve plates at their end walls. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक sieve cell है, ये दूसरा, ये टिपिकल sieve cell है, तो ये sieve cell का जो end region होता है ना, it gets converted into a plate like structure like this. Okay, and this plate will have many small pores like this. तो ये प्लेट के ऊपर ऐसे बहुत सारे pores आते हैं. Okay, so we call them as what? We call them as sieve plates. Sieve plate इसके लिए बोलने का, because these are known as the sieve tubes. And these sieve tubes are arranged one on each other, end to end. इस तरीके से arrangement रहेगा. तो वापस एक particular sieve tube element आ जाएगा, फिर वापस नीचे जाओगे तो और एक आना दिखेगा आपको इस तरीके से. ठीक है, so this is how they will be arranged.
right? And along with them we are going to have the companion cells. तो उनके बाजू में ही ऐसे companion cells रहेंगे. और companion cells क्या करते हैं? तो companion cells are going to provide nourishment and support to the sieve tube elements. ठीक है? And sieve tubes is a typical character of angiosperms. तो ये angiosperms का characteristic है, right? जो आपको किधर नहीं मिलेगा? टेरिडोफाइट्स और इसमें नहीं मिलेगा. जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में आपको नहीं मिलेगा. कौन सा फर्स्ट स्लाइड चाहिए ऋतुजा? सर इसके पहले वाला. ये समझा क्या जो मैंने अभी बताया? यस सर. पहले अच्छे से समझ लो. लिखने के लिए क्या है, थोड़ा सा मिस आउट भी होता है ना, तो यू कैन राइट इट डाउन बाय वाचिंग द वीडियोस, राइट? कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन राइटिंग. ये सर वो नेम थे ना, वो वाला. दिस वन. यस सर, थैंक यू. हो गया? यस सर. ओके. ये कॉन्सेप्ट समझा आपको सीव ट्यूब्स का? ठीक है. सीव प्लेट समझ में आया? दिस इज नोन एज द सीव प्लेट. ठीक है. अच्छा, ये क्या होता है ना, इसमें ना द साइटोप्लाज्म इज इंटैक्ट बट द न्यूक्लियस इज लॉस्ट. ओके. एंड दिस साइटोप्लाज्म कैरीज द फूड. So the food along with the cytoplasm will be transported from one sieve tube to another, or rather from one sieve cell to another. इस तरीके से ये एलिमेंट से एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में along with the cytoplasm, मतलब साइटोप्लाज्म भी एंटर होगा और उसके साथ फूड भी एंटर होगा. ऐसा ये थियरी है. ठीक है. Now the companion cells are what? Again they are the living cells showing a proper protoplasm with a large nucleus and a thin cell wall. And as I said, they are basically responsible for providing nourishment. So the companion cell, नाम से पता चलता है ना, companion मतलब क्या? साथीदार, जो अपने साथ रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं companion. So वैसा ही ये काम कर रहा है. So companion cells originate from same meristems that give rise to sieve tube elements. जहां से sieve tube आता है उसी meristem से companion cells develop होंगे. And these companion cells will have the simple pits. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे पिट्स होते हैं which is a direct connection with the sieve tube, correct? And it controls the functioning of the sieve tubes. समझ में आ रहा है? So companion cell is known to control the entire functioning of the sieve tube, found in the gymnosperm but not found in the angiosperms but not in the gymnosperms and pteridophytes. तो कंपेनियन सेल्स भी आपको जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपेनियन सेल का प्राइमरी काम क्या रहता है और मेजर वर्क इज टू प्रोवाइड सपोर्ट और कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब. और जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में सीव ट्यूब तो है ही नहीं, वहां पे है सीव सेल्स. तो सीव सेल्स के लिए कंपेनियन सेल्स की जरूरत नहीं है. क्लियर? कंपेनियन सेल्स आर क्लियर? यस सर. बस ये एक इम्पोर्टेंट है. स्टार्टिंग लिखा है एक बार. यही तो है स्टार्टिंग का. कौन सा? ये वाला. हाँ. सीव ट्यूब अमन रहता है एंजियोस्पर्म्स में और सीव सेल्स रहेगा जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में. डन? No, sir. Sir, ओम क्या एक्सप्लेन करना है अगेन? ओम इज सेइंग प्लीज एक्सप्लेन अगेन. Yes, sieve cells are absent in angiosperms, but they are converted into sieve tubes. Companion cells will have the chloroplast, but again the amount is very less, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना उसकी, because they are the internal tissues. तो उनको क्लोरोप्लास्ट की वैसे भी जरूरत नहीं है. But then they will have what? They will have a proper protoplasm, well-developed protoplasm, and this protoplasm helps in providing and controlling the entire sieve tube का functions. Okay, so they will show these small pits, छोटे-छोटे pits मिलेंगे, and these pits will help in control.
जैसे मैंने बताया ना कि सीव ट्यूब में, सपोज ये एक सीव ट्यूब है और इसके ऊपर ही दूसरा सीव ट्यूब है और यहाँ पे आपका सीव प्लेट है, तो सपोज यहाँ का साइटोप्लाज्म शिफ्ट होकर इधर हो गया तो इधर साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा ना, तो ये कंपेनियन सेल्स अपना साइटोप्लाज्म यहाँ पे रिलीज कर देंगे and they will produce their own cytoplasm again because they have those organelles. Correct? Finish? Done? चलो, so now sieve tube जो रहते हैं, sorry, companion cells जो रहते हैं ना, they are basically the one which are the living cells. तो ये सारे cells living cells होते हैं, having their own cytoplasm and the nucleus also, correct? And they are known to support the sieve tube elements, found only in the angiosperms but not in the gymnosperms and pteridophytes. तो दोनों में आपको नहीं मिलेगा. बाद में फिर फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा, सेम जो हम लोगों ने जाइलम में पढ़ा, बस वही इंफॉर्मेशन इधर आएगा, तो सेम हम लोगों ने वैसे ही उसको लिख दिया है. फ्लोएम फाइबर्स क्या रहते हैं? अगेन स्क्लेरेनकाइमेटस elongated cells, the cell wall is going to be lignified with the simple pits on them. They are basically responsible for providing mechanical support to the body. ठीक है, दैट इज प्लांट बॉडी. तो प्लांट बॉडी को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एंड फॉर मेकिंग रोप्स एंड रफ क्लॉथ, ये इंपॉर्टेंट है. तो जो टिपिकल रोप गनी बैग्स का जो बनता है ना, रोप्स वगैरह बनते हैं, सो दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ द फ्लोएम फाइबर्स. ठीक है, तो वो फ्लोएम फाइबर्स से बनता है, राइट. एंड देन फ्लोएम पेरेन्काइमा, सेम मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, absent in case of monocots. Dicot में आपको मिलेगा phloem parenchyma. It is known to store and transport the food material. And the cells here are going to be, cells are living. Okay, here the cells are dead. ठीक, बस ये हो गया हमारा phloem, the concept of phloem. ओम समझा क्या आपको? मैंने वापस बताया था ये, मिस्टर ओम चौहान. प्लीज मैसेज और say something if you have understood. चलो, हो गया लिख के? Shall we move ahead? आई? Yes, sir. बड़ा सा नो लिख देते तुम लोग, जल्दी जल्दी करो यार. Yes, okay, Mr. Om. चलो आगे बढ़े, हो गया मेरे ख्याल से सबका लिख के. So I'll move ahead now. ठीक है, सो ये हो गया हमारा फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा.
अभी ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, ठीक है, टिश्यू सिस्टम, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, वी आर स्टडिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर, राइट, एनाटॉमी पढ़ रहे हैं हम लोगों ने, बेसिक टिश्यूज पढ़ लिया। अब ये सारे टिश्यूज का अरेंजमेंट जो होता है ना विद इन द प्लांट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट, वो जो अरेंजमेंट होता है यानी मोनोकॉट डाइकॉट में कैसे ये अरेंज होगा, सो दैट इज नोन एज द टिश्यू सिस्टम। Okay, now a tissue or a group of tissue which is derived from a portion of the meristem which performs the similar function in the plant body irrespective of its position is known as the tissue system. जैसे tissues is a group of cells, बाकी definition same, वैसा tissue system is a group of tissue. I hope everyone is getting this. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। अभी ना सैचेस नाम के साइंटिस्ट ने ही क्लासिफाइड टिश्यूज और द टिश्यू सिस्टम इनटू 3 बेसिक टाइप्स। तो 3 बेसिक टिश्यू सिस्टम्स उसने बताया। कौन से? सबसे पहला आता है दैट्स कॉल्ड एज एपिडर्मल टिश्यू। अभी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मतलब क्या? द वन विच इज गोइंग टू फॉर्म द आउटर लाइनिंग ऑफ द प्लांट, लेट इट बी योर स्टेम, लेट इट बी रूट, लेट इट बी द लीव्स। So epidermal tissue system। उसके बाद दूसरा आता है that's called as the ground tissue system, मतलब internal structures, and the last but not the least is the vascular tissue system। तो vascular tissue system में कौन आएगा? vascular tissue system में we are going to have xylem and phloem। और epidermal tissue में क्या आएगा? epidermal tissue में mainly we are going to have epidermis, है ना, hypodermis, like this। और बाकी का बचा हुआ कौन रहेगा? दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, करेक्ट। तो ये साइंटिस्ट ने टिश्यूज को 3 बेसिक टिश्यू सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। सबसे पहला आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। लिख के हो गया ना वो? यस सर। The most important is the epidermal tissue system। मतलब क्या? The one which is derived from the protoderm। If you remember, हम लोगों ने last time पढ़ा था protoderm करके एक structure आता है। So from there this epidermal tissue system will divide and it is the outermost covering of the entire plant body। पूरे प्लांट बॉडी का जो बाहर का कवरिंग आता है, जैसे हमारे बॉडी का स्किन आता है वैसा प्लांट बॉडी का आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। एंड दिस इज ऑल मेड अप ऑफ दीस सेल्स नोन एज द एपिडर्मल सेल्स। अभी एपिडर्मल सेल्स के ऊपर क्या रहेगा? सो दे आर गोइंग टू शो द स्टोमाटा which are the minute microscopic openings which are responsible for exchange of gases and transpiration। So it will be present, so either it will be present on the lower epidermis or the upper epidermis depending upon the type of plant and the type of leaves। Then it will also show the trichomes and hairs, ठीक है। तो इनको रहते हैं ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, these structures are known as the trichomes and hairs। So these are all the structures which are found in the epidermal tissue system। तो epidermal tissue system का जो cells होता है they are known as the epidermal cells and tissue system is made up of a tissue known as epidermis। आएगा दिया। ट्राइकोम क्या होता है वो मैं बोलता हूँ, ये बेसिक शुरुआत है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सब स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। नाउ इट इज एज आई सेड इट इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस ना। एपिडर्मिस इज नथिंग बट द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल्स। हाउ आर द सेल्स? तो सेल्स कैसे रहते हैं? द सेल्स आर बेसिकली कॉम्पैक्टली इलोंगेटेड, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स which forms a continuous layer, so there is no space present between the cell, intercellular space is absent, and epidermal cells are parenchymatous and usually single layered, ठीक है, so that you know they can have the important function of storage of the food also। इसके लिए ये इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है, तो ऐसे दिखेगा। So they will have a proper cell wall with a cytoplasm and a large vacuole, ठीक है, nucleus is slightly shifted towards the periphery। In case of stem and leaves, the epidermis will have a covering। ये वाला रूट में इस तरीके से रहेगा, लेकिन स्टेम और लीफ में क्या होता है? एपिडर्मिस के ऊपर एक बाहर वैक्सी कवरिंग आ जाता है which is known as the waterproof type of a covering called as the cuticle, and cuticle prevents the excess loss of water by transpiration, correct। तो ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो कम हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम।
and cuticle of course will be absent in the roots, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना, roots are present inside the soil, so cuticle is not required. क्योंकि रूट में तो ट्रांसपिरेशन होगा नहीं, ट्रांसपिरेशन होगा तो या तो स्टेम के थ्रू होगा या फिर लीव्स में से होता है. मेजरली इट इज फ्रॉम द लीव्स, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ लीव्स आर मोर. आर यू ऑल गेटिंग दिस? एपिडर्मिस. हेलो. Yes. हाँ हाँ, Yes, sir. बात करो. चलो लिख लो इसको फटाफट. सर टिश्यू स्ट्रक्चर से एक बार स्टार्टिंग, क्या 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 क्या? टिश्यू सिस्टम से एक बार स्टार्टिंग. पहला वाला ये इसके पहले वाला ये सर हो गया क्या अमन? No, sir, 1 minute. फिनिश्ड. Yes, sir. This one is done. Done everyone, shall we move ahead? यस सर. Done. चलो गुड. तो ये आपका एपिडर्मिस एज अ स्ट्रक्चर हो गया. अभी एपिडर्मिस के ऊपर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है नोन एज द स्टोमाटा. Now what are stomata? They are basically again present in the epidermis of the leaves, majorly on the leaves, and generally they are present on the back surface of the leaf. Okay, and useful for transpiration and exchange of gases. तो उसके लिए काम में आता है. Transpiration is basically loss of water in the form of water vapors. As you can see, the stomata will be lined by or will be covered by a structure known as the cells known as the guard cells. Okay, and this one is the open stomata, this one is the closed stomata, and the guard cells का type भी थोड़ा सा अलग है. देखो, here the guard cells are dumbbell shaped or kidney shaped, here the guard cells are triangular in shape. Correct? So here it's going to be kidney shaped, found in case of dicot leaves, whereas here it's going to be dumbbell shaped or triangular in shape, found in case of monocot. तो गार्ड सेल का स्ट्रक्चर भी अलग होता है. सो बेसिकली स्टोमाटा होता क्या है ना, तो वी हैव द गार्ड सेल्स लाइक दिस. ओके, एंड दिस गार्ड सेल्स when they are turgid they are going to leave a space. turgid मतलब जब वो एकदम thick हो जाते हैं और जब एकदम hard हो जाते हैं, and when they are swollen, so that time they leave a space between them. छोटा सा ओपनिंग बाजू बाजू में उसके बीच में रह जाएगा. So that opening is known as the stomata, and these guard cells are surrounded by the peripheral cells like this. तो उसके आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे सेल्स रहेंगे. And always remember guard cells का जो inner wall रहता है, this inner wall is going to be thick. ठीक है, so that it can maintain the structure, right? And the outer wall is going to be comparatively thin. ठीक है. So the cells around the guard cells, these are the cells known as the subsidiary cells. Okay, they are called as the subsidiary cells. These are known as the guard cells. This is known as the stomata. ठीक है, और stomatal aperture. The entire structure is known as stomatal apparatus. पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग स्टोमेटल एपरेटस बोलते हैं. अच्छा, ये सेल्स भी लिविंग होते हैं तो इनको प्रॉपर न्यूक्लियस भी रहेगा. गार्ड सेल्स को एक बड़ा सा वैक्यूल रहेगा लाइक दिस, व्हिच मेक्स इट टर्जिड. समझा ये सबको? जो डायग्राम मैंने निकाला हुआ है ना वो निकाल के रखो. एक्सक्यूज मी सर. एक मिनट, हाँ बच्चों, जरा जस्ट गिव मी अ मिनट.
Student, just give me 2 minutes. I am coming. फिर आगे बढ़े. Stomata is clear. This entire structure, ये जो पूरा structure होता है, this is known as stomatal apparatus. Okay. So basically जो यहाँ पे same लिखा हुआ है, stomatal aperture plus guard cells and subsidiary cells. तो ये सब मिलकर बनता है stomatal apparatus. Right? तो ऐसा ये स्टोमाटा रहता है, which is a part of your epidermis. Then what are trichomes and hairs? Now basically we are going to have root hairs which are present in the roots. बराबर है, तो वो hairs हो गए. So on the stem also we are going to have these small structures like this. Root hairs are going to be unicellular, whereas trichomes are multicellular. Correct? Root hairs will always be unbranched, whereas the trichome is going to be branched or unbranched. दोनों भी option हो सकते हैं. This is useful for absorption of water. This is useful for regulation of transpiration. Okay? Trichome का काम होता है to regulate the entire process or mechanism of transpiration. So that is the work done by the trichome. ठीक है? Clear everyone? So ऐसे ये structure. So root hairs are mainly found where? Root hairs are mainly found in the roots, and this is found either on the stem or leaves. ठीक है? So this is the difference between the root hairs and trichome. But they are originated from where? All these are originated from the epidermis. So that is why they form the part of your epidermal tissue system. देखो ये tissue system के हिसाब से ही हम लोगों को पढ़ना है पूरा anatomy. हाँ, cross section जो हम लोग पढ़ने वाले आगे चल के, TS of stem, TS of root, TS of leaves. So this all will be based on this tissue system. Sir, the guard cells are not compulsory structure in all the plants. So when guard cells are absent, so the subsidiary cells helps in the opening of the stomata. ऐसा किधर है ये information? So means I have heard it that Bhakti? guard cells are not the means they are not compulsory in all the plants. So if they are absent, subsidiary cells help. Obviously फिर subsidiary cells will help, but then I need to find out the reference, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कभी. Which is the plant which does not have the guard cells and the opening of the stomatal aperture is done by the subsidiary cells. क्योंकि दो ही वैरायटी के प्लांट्स आएंगे, या तो डाइकॉट या फिर मोनोकॉट. डाइकॉट रहेगा तो गार्ड सेल्स आर गोइंग टू बी किडनी शेप्ड, बीन शेप्ड, एंड इफ इट इज मोनोकॉट देन दे आर गोइंग टू बी डम्बेल शेप्ड और ट्रायंगुलर इन शेप. तो ये तो फिक्स्ड होता है. Okay, so just find out which are those plants where guard cells are absent and subsidiary cells are doing their function. Yes, sir. ठीक है? हाँ. चलो, shall we move ahead now? Trichomes and hair is clear. अच्छा, उसके बाद आता है next, that's called as the ground tissue. अभी ground tissue मतलब क्या? So this includes all tissues excluding the epidermal tissue and the vascular tissue. सब कुछ आ जाएगा. प्लांट के अंदर जितने भी बाकी हाइपोडर्मिस एक्सेट्रा जो भी रहेगा, सो एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन द ग्राउंड टिश्यू एक्सेप्ट फॉर द एपिडर्मिस एंड द वैस्कुलर टिश्यू. तो ये दो टिश्यूज छोड़ा तो बाकी सब कुछ आएगा हमारे ग्राउंड टिश्यू में. सो द ग्राउंड टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्राउंड मेरिस्टेम, जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था. दैट्स कॉल्ड एज द ग्राउंड मेरिस्टेम, एंड दिस इज हाउ द ग्राउंड टिश्यू विल लुक लाइक. नाउ दिस इज द टीएस ऑफ रूट एंड डाइकॉट स्टेम. करेक्ट? तो उसमें ग्राउंड टिश्यू कैसा दिखेगा? तो ये सबसे बाहर का जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस. ठीक है? उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको ट्रायंगुलर शेप्ड एंड सर्कुलर विच आर इन पर्पल कलर, दैट इज द वैस्कुलर टिश्यू. तो जाइलम एंड फ्लोएम है. अच्छा, वैस्कुलर टिश्यू और एपिडर्मिस छोड़ा तो बाकी का बचा हुआ क्या बन गया आपका? ग्राउंड टिश्यू. तो ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले तो इसके अंदर आएगा हाइपोडर्मिस, जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे रहेगा. फिर उसके बाद आएगा कॉर्टेक्स, जो ये वाला रीजन है, दिस वन. ये येलो लाइन दिख नहीं रहा है, सो दिस इज कॉर्टेक्स, दिस इज हाइपोडर्मिस. या उसके बाद आता है एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के बाद आएगा पिथ. एक्चुअली कॉर्टेक्स उन्होंने बाहर की तरफ दिखाया. चलो ठीक है, कॉर्टेक्स इज स्लाइटली ऑन द आउटर सरफेस. So this region, so this entire region is the cortex.
ओके उसके बाद ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के बाद आता है ये पिथ, पिथ मतलब सेंट्रल पोर्शन जो जनरली पेरेनकाइमेटस होता है, और ये जो जाइलम और फ्लोएम के आजू बाजू में ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द मेड्यूलरी रेज, सो दिस वन, तो ये पूरा ऐसा मेड्यूलरी रेज है, and this is how the entire structure, तो ground tissue में you are going to have all these tissues, hypodermis, cortex, endodermis, pith and medullary rays, so everything will be present here in the ground tissue. समझ में आ रहा है आपको ये? और सारे डायग्राम्स ऐसे ही रहेंगे इसके, तो आप भले ही ग्राउंड टिश्यू का डायग्राम निकाल के रखो फॉर योर रेफरेंस, लेकिन आगे फिर कोई डायग्राम नहीं निकालनी है आपको, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड. अच्छा हो गया सबका ये सर, मेडुलरी रेज कहाँ पे हो? अच्छा अमन, ये मेडुलरी रेज का कॉन्सेप्ट ना बाद में हम लोग पढ़ेंगे फिर से जब हम लोग एक्चुअल टीएस पढ़ने वाले. जस्ट मेडुलरी रेज इज द टाइप ऑफ सेल्स ओनली, ग्रुप ऑफ सेल्स ओनली जो इस तरीके से डेवलप होते हैं बीच बीच में ऐसा, ठीक है? सो ये ग्रुप ऑफ सेल्स ही है, तो मैं बताता हूँ कि कैसे बनता है, क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू योर सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो इसके लिए, राइट? चलो आई कंसिडर एंड एज्यूम कि ये खत्म हो गया. सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द ग्राउंड टिश्यू ऑफ द डाइकॉट स्टेम एंड रूट, ठीक है? और वहीं अगर हम लोग मोनोकॉट की बात करते हैं, मोनोकॉट स्टेम में यू विल हैव एपिडर्मिस लाइक दिस एंड जस्ट सी द वैस्कुलर बंडल्स, they are not arranged regularly, they are arranged irregularly here in the monocot stem. और बीच में बचा हुआ क्या रहेगा? तो ग्राउंड टिश्यू. तो ग्राउंड टिश्यू क्या क्या रहेगा? तो इसमें रहेगा हाइपोडर्मिस, ये वाला स्ट्रक्चर आता है हाइपोडर्मिस. देन इट्स गोइंग टू हैव द ग्राउंड पेरेन्काइमा जो यहाँ पे बीच में रहेगा, दैट्स इट.
बाकी के टिश्यूज यहाँ पे नहीं रहेंगे, बचा हुआ पूरा क्या रहेगा, दैट्स कॉल्ड एज अ ग्राउंड पेरेन्काइमा। समझ में आ रहा है? तो मोनोकोट स्टेम में ground tissue will include only hypodermis and ground parenchyma, whereas in case of dicot stem it will have all the other different structures. समझ में आ रहा है सबको ये? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या हो गया, सब लोग शांत क्यों हो गए, इतने डल क्यों हो गए? This is TS of leaf. Okay, now if I take a transverse section of the leaf, then how and what we will observe, how we will observe the ग्राउंड टिश्यू। अब ये बाहर का, ऊपर का और नीचे का, ये दोनों भी क्या हो गया हमारे लिए, एपिडर्मिस। सो दिस इज नोन एज अपर एपिडर्मिस, दिस इज कॉल्ड एज लोअर एपिडर्मिस। लास्ट स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड। डन? Done. ओके, तो एपिडर्मिस रहेगा ये। अच्छा, एपिडर्मिस के बाद और क्या रहता है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू? व्हाट इज दैट विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू? हेलो, वैस्कुलर बंडल। किधर है वैस्कुलर बंडल? इधर, ये वाला पर्पल कलर का, बराबर है। सो दिस इज दी वैस्कुलर बंडल, बराबर है, जाइलम और फ्लोएम। अभी बचा हुआ क्या है, हो गया अभी यहाँ पे बचा हुआ जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू। तो इसमें क्या रहेगा, तो इसमें सबसे पहला आता है मीजोफिल सेल्स। तो दो टाइप का मीजोफिल्स आता है। सबसे पहला मीजोफिल सेल आता है, दैट्स कॉल्ड एज द पैलिसेड मीजोफिल, व्हिच इज जनरली प्रेजेंट नियर द अपर एपिडर्मिस। And since you can see the arrangement of the cells is such that they are arranged end to end without any space between them, and therefore upper surface of the leaf looks dark green in color. Correct? Whereas lower surface देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको mesophil cells बहुत कम दिख रहे हैं। What you have here is known as the spongy mesophil. ये जो cells होते हैं ना, these are called as spongy mesophil. Spongy इसके लिए because between the cells there is a space, and this space is known to trap the air. So it traps the air. इसके अंदर air trap हो जाता है. So whatever air enters in and exits out, that is getting trapped here between these parenchyma cells. That is why it appears like a sponge. इसके लिए उसको बोलते हैं spongy parenchyma. So this one is the spongy parenchyma. So this is how the structure. So these are the cells. मतलब ground tissue में आपको मिलेगा mesophil cells. Leaf में, अभी इसमें दोनों भी leaf, मोनोकॉट डाइकॉट दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर रहेगा। सिर्फ फर्क ये आता है कि थोड़ा सा like you know the amount of palisade mesophils will vary in upper epidermis and lower epidermis. ठीक है, एंड यहाँ पे ज्यादा क्यों होते हैं, बिकॉज लाइट एक्सपोजर टू द अपर सरफेस ऑफ द लीफ इज मोर ना, सो ट्रैपिंग ऑफ द सनलाइट विल बी मेजरली डन बाय द पैलिसेड मेसोफिल. दैट इज व्हाई दे आर dense, thickly arranged at the near the upper epidermis. Is it clear? Yes, sir. Good. तो ये हो गया हमारा ग्राउंड टिश्यू ऑफ द लीफ. ठीक है, और इसके बाद आता है फिर हमारा वैस्कुलर बंडल, अनदर टिश्यू सिस्टम दैट्स कॉल्ड एज द वैस्कुलर बंडल. नाउ ये लो लास्ट स्लाइड. ओके, चलो. नाउ वैस्कुलर टिश्यू, नाउ अगेन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोकैम्बियम, जो हम लोगों ने पहले लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में. प्रोकैम्बियम क्या होता है, also called as the vascular bundle or vascular strands, or also known as the vascular cylinders. अभी इसके भी अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं. ठीक है, now according to the arrangement of the xylem and phloem, किस तरीके से अरेंज होता है, तो उसके 3 बेसिक टाइप्स आते हैं. थोड़ा ध्यान दो इधर, अभी बाद में लिखना. What are the 3 basic types? तो सबसे पहला टाइप आता है, that's called as radial. ठीक है, second type is known as the conjoint, and the third type is known as concentric. ठीक है, तो 3 टाइप के वैस्कुलर टिश्यूज आएंगे. कौन से? रेडियल वैस्कुलर बंडल्स, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल्स एंड कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन बाय वन. सबसे पहला आता है रेडियल वैस्कुलर बंडल. थोड़ा ध्यान दो इधर अभी.
Now, what is radial vascular bundle? So the xylem and phloem are radially arranged in the form of separate bundles on different radii. This is very important. Matlab, xylem is arranged at a different radius, phloem is arranged at a different radius. Like for example, this is the arrangement of the xylem, whereas this one will be the arrangement of the phloem. So they all are arranged at the different radius. मतलब phloem का radius अलग है और xylem का radius अलग है. Correct? So actually it will look something like this. तो ये वाला जो है this is actually xylem. ये xylem में जो brown color का दिख रहा है और जो blue color का दिख रहा है that is called as the phloem. तो उसको हम लोग बोलते हैं phloem. So this is how the xylem and phloem will be seen getting arranged. समझ में आ रहा है सबको ये? So this is known as what? This is called as radial vascular bundle. Okay, found in the roots. तो आपको ये roots में मिलेगा. ठीक है? Are you getting this? Yes, sir. आप ना लाइन डायग्राम दिया ड्रॉ करके रखो. ऐसा ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो. Just write down the first type. Sir, last slide दिखाना है. Last slide. ये last slide. Done, sir. Done. ये ड्रॉ करके रखो. हाँ, finished. Hello. Yes, sir. Okay. ठीक है. चलो. Next one is the conjoint vascular bundle. Okay. Now, what do we mean by conjoint? अभी यहाँ पे फर्क देखो क्या है. Xylem and phloem are present at the same radius. ठीक है. So they are present on the same radius. So we call this as collateral vascular bundle. ठीक है. अभी collateral vascular bundle में ये होता है that the xylem is present inside and phloem is present outside. क्योंकि दोनों भी कैसा है, both are present on the same radius. तो xylem किधर रहेगा? Xylem will be present inside. Phloem किधर रहेगा? Phloem will be present outside, like this. So it appears like this. So we have a xylem here, we have a phloem here, and between the xylem and phloem there will be presence of cambium. So if there is presence of cambium, which is the secondary growth, we call this as collateral vascular bundle. So it appears like this. So we have a xylem here, we have a phloem here, और दोनों के बीच में रहेगा कैम्बियम. Okay, just a minute.
ओके सॉरी अगेन सम इशू ब्रांच में ना एक्चुअली स्टूडेंट्स भी है ना आए हुए, तो इसके लिए थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। एम आई ऑडिबल नाउ प्रज्ञा? प्रज्ञा Yes, सिंपली sir. और नॉट ऑडिबल? Yes, sir. चलो cool. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल का बेसिक कॉन्सेप्ट इज जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट एट द सेम रेडियस. Okay, if it is collateral vascular bundle, then the xylem is inside, phloem is outside. So it appears like this. और दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में आता है cambium, which is a secondary growth. Okay, now this is found in the dicot stem, right? Now in case of another condition जहां पे we do not see the cambium. एक मिनट अमन रुक जरा. अभी यहाँ पे ना xylem and phloem are closely attached and there is no cambium being present, so it appears like this. So we have a xylem here. जो बड़े बड़े सर्कल दिख रहे हैं वो xylem है, और ये छोटे छोटे वाले जो सर्कल दिख रहे हैं वो क्या है? phloem. So there is no cambium. So this is found in monocot. Because if you remember, मैंने आपको पहले भी बताया था कि secondary growth, cambium, cork, ये सब कौन से प्लांट में बनता है? So it is formed in the dicot stem and not in the monocot. तो इसके लिए naturally monocot में cambium will be absent. So here this one is, अच्छा अब ये दोनों भी कौन से हो गए? ये दोनों भी हो गया हमारा collateral vascular bundle. प्रज्ञा, cambium is the secondary growth. आपने कभी देखा होगा स्टेम जो ब्राउन कलर का बाहर का स्ट्रक्चर होता है ना, स्टेम का जो बड़ा सा ब्राउन कलर, वो वैसा ही अंदर भी होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैम्बियम, जो बनता है फ्रॉम द xylem एंड phloem itself. ठीक है, आगे आएगा, पढ़ने वाले हम लोग, राइट? आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द, हेलो एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हेलो 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 हेलो. मेरा इंटरनेट अनस्टेबल हो गया था, इसके लिए मैंने हेलो 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 किया. ओके ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग दिस कि हम लोग अभी ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दी ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस ऑफ ऑल दी स्ट्रक्चर्स, स्टेम, रूट, लीफ, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों का. इसके लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं. दो टाइप का कोलैटरल वैस्कुलर बंडल मिला. कौन सा? एक ऐसा मिला जिसमें कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द xylem एंड phloem. दोनों में xylem इज इनसाइड, phloem इज आउटसाइड. In one presentation we have seen xylem और phloem के बीच में cambium है. In another presentation we have seen xylem और phloem के बीच में cambium is absent. Cambium is present in dicot, cambium is absent in monocot. Such type of presentation, cambium प्रज्ञा का मतलब ये होता है that it is a type of secondary growth. Okay, प्रज्ञा, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या? जो आपने बड़े बड़े प्लांट्स का ब्राउन कलर का स्टेम देखा है जिसको हम लोग बार्क बोलते हैं. प्रज्ञा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. तो वो बार्क इज नथिंग बट द टाइप ऑफ कैम्बियम. Okay, sir. आएगा आगे, हम लोग पढ़ने वाले, डोंट वरी. Okay, sir. ओके, हाँ. तो अभी ना यहाँ पे दो प्रेजेंटेशंस मिला कोलैटरल वैस्कुलर बंडल का. वन जिसमें कैम्बियम इज प्रेजेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजॉइंट कोलैटरल ओपन वैस्कुलर बंडल. कंजॉइंट कोलैटरल ओपन वैस्कुलर बंडल. व्हाई ओपन? बिकॉज इट हैज द कैम्बियम. मतलब xylem और phloem के बीच में गैप है तो वो ओपन है, ऐसा दिखाया गया है. तो नेचुरली ये वाला कौन सा रहेगा? सेकंड वन, Conjoint very collateral. good. Closed vascular bundle, CCC. So it will be known as what? Conjoint collateral closed vascular bundle. Get in this? तो ऐसा ये दोनों का प्रेजेंटेशन, दोनों मिलकर होता है हमारा कोलैटरल वैस्कुलर बंडल. और अदर कंजॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल, उसमें से एक कंजॉइंट कोलैटरल ओपन रहेगा बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम बिटवीन xylem एंड phloem. दूसरा क्लोज रहेगा बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ कैम्बियम बिटवीन xylem एंड phloem. डन? समझा सबको? कुछ प्रॉब्लम, डाउट, डिफिकल्टी, तकलीफ, परेशानी? No, sir. गुड. सबने ये लिखा? Yes, sir. गुड. आगे बढ़े? नहीं. वेरी गुड अमन. अमन तू बहुत स्लो हो गया है, ढीला. प्रज्ञा वन इज, आप ध्यान नहीं दे रहे हो प्रज्ञा, इसका मतलब मैं कितना स्लोली पढ़ा रहा हूं. ओपन इसके लिए होता है बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम. ये दोनों टिश्यूज के बीच में यहाँ पे एक और एक टिश्यू बन गया ना,
उसको बोलते हैं कैम्बियम. कैम्बियम इज द सेकेंडरी ग्रोथ, जिसको एक कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं बार्क और कॉर्क, जो बनता है जाइलम या फ्लोएम से. तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, कैम्बियम यहाँ पे एब्सेंट है. प्रेजेंट है इसके लिए फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक स्पेस हो गया, ऐसा बोला गया, इसके लिए उसको ओपन बोलते हैं. और दोनों के बीच में कुछ नहीं है, इसके लिए उसको क्लोज्ड बोलते हैं. समझा? Yes, sir. ध्यान दो, मैं ये सब चीजें बार बार बोल रहा हूं, आपका ध्यान नहीं है. डन? फिनिश? शैल वी मूव अहेड? Yes, sir. Okay, next one, conjoint vascular bundle में next one, this is known as bicollateral vascular bundle. Okay, it is by का मतलब आता है what? Two. So यहाँ पे the phloem is present outside, xylem is in the middle, and again phloem is present inside. मतलब xylem is present between the phloem, या फिर xylem के बीच में आजू बाजू में दो फ्लोएम के बंडल्स है. ओके, तो ऐसा ये ठीक है, तो ऐसा ये स्ट्रक्चर रहेगा. सो दिस इज हाउ दैट स्ट्रक्चर विल बी सीन. सो इट इज नोन एज बायकोलैटरल वैस्कुलर बंडल. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज द ओके. ठीक है, तो हाउ इट विल लुक लाइक. सो यहाँ पे जाइलम रहेगा, जाइलम इज वेयर, जाइलम इज इन द मिडल, और उसके आजू बाजू में क्या है? फ्लोएम. चलो, दोनों जगह पे गैप है, तो ये गैप में क्या रहेगा? जल्दी बोलो, गैप में क्या रहेगा? Cambium. Very Cambium. presence of cambium, fantastic. So presence of cambium. तो ये कौन सा टाइप हो गया फिर से? ओपन ना? हाँ. गुड. तो ये ऐसे दिखेगा आपको. ठीक है, टिपिकल टीएस ऑफ द स्टेम. तो जाइलम इज प्रेजेंट हियर, phloem is present here, and phloem is present here also. Correct? So this is called as bicollateral vascular bundle. So we have outer cambium, inner cambium, which is present between the xylem and phloem. So this vascular bundle will always be open. इसमें कभी भी आपको closed vascular bundle नहीं मिलेगा. So that's the typical character of bicollateral vascular bundle. मैं जानबूझ के बाय और को के बीच में स्पेस दे रहा हूं, पॉज ले रहा हूं, नहीं तो बाइकोलैटरल हो जाएगा, तो ये किसी की बाइको हो जाएगी, है ना? तो ऐसा नहीं है. इट इज बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल. इज इट क्लियर? व्हेरी गुड तनिष्क. आई, अरे बाप रे, काय झालं रे बाबा? ओ चलो तनिष्क, आई विल टॉक टू यू लेटर. Sir, so this type of vascular bundle will not be present in monocots then? अभी देखते हैं क्या होता है. गुड क्वेश्चन. लेट्स कीप अ सरप्राइज एंड सस्पेंस. लॉजिक आप बराबर लगा रहे हो, लेकिन व्हाट डू यू थिंक? बराबर है ना? ओपन ही रहेगा हमेशा. लेकिन देखते हैं, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली में आपको ये मिलेगा, कुकुम्बर वाला फैमिली, तो वहां पे आपको बायकोलैटरल वैस्कुलर बंडल मिलेगा. तो या तो फिर बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल नहीं रहेगा, या फिर किसी स्पेसिफिक फैमिली में ही आपको मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज मोनोकॉट और डाइकॉट. क्लियर? Yes, sir. गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. यस, आदित्य ने रेज किया है हैंड. आदित्य वांट्स अ माइक. आदित्य विल बी गिवन अ माइक. पीयूष आ गया बीच में. किसने हाथ ऊपर किया है? हाँ, दीपांकर. चलो, अचानक ऐसे लेट लेट क्यों आ रहे हो तुम लोग? आदित्य तो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरे ख्याल से. चलो आगे बढ़े. कंजॉइंट कोलैटरल और अदर कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. अभी कंजॉइंट के बाद आता है कॉन्सेंट्रिक. 3 है ना? बराबर है. सो दिस वन इज द कॉन्सेंट्रिक. कॉन्सेंट्रिक मतलब रिंग लाइक ना, गोल गोल. ठीक है. सो अगेन वन टाइप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू इज सराउंडेड बाय अनदर. राइट? सपोज इफ वी हैव अ xylem here,
So around the xylem we are going to have the phloem. Are you getting this? So pura xylem will be surrounded by the phloem. So this is known as what? This is called as heterocentric or amphicribral. Heterocentric मतलब क्या? Hetero मतलब what? Water. Centric मतलब center. Center में कौन है? Xylem. जो कैरी क्या करता है? Water. समझा? Yes, sir. इसके लिए उसको हाइड्रोसेंट्रिक बोला गया है. ठीक है. So as I said, there will be presence of xylem in the center and phloem is going to surround the entire xylem. So this is known as what? Concentric vascular bundle. ठीक है. Found in fern. तो ये आपको फर्न में मिलेगा. अभी उल्टा, जिसमें there are some plants जहां पे phloem will be present inside and xylem is present. Xylem is surrounding the phloem. ठीक है. तो ये अभी opposite हो गया. So this is known as what? This is called as leptocentric. Leptos मतलब tissue actually or food you can say or tissue. ठीक है. And it is also known as amphivessel. ठीक है. Called as amphivessel. मतलब इसमें क्या हो रहा है? Again, the phloem is present in the center and xylem is surrounding the phloem. Correct. So this is known as leptocentric concentric vascular bundle. Yucca is an example of this. समझ में आ रहा है अभी ये? Yes, sir. So the cambium is absent in both the cases, right? Yes, perfect. ठीक है. हो गया. आगे बढ़े. Yes, sir. गुड. ठीक है. अच्छा, तो अभी ना ये आई अमूली टायर हो गई. अमूली थक गई, पढ़ पढ़ के थक गई. चलो गुड. हेलो. अमूली बेचारी थक गई. बस अमूली थोड़ा सा पढ़ते हैं एंड देन वी विल स्टॉप. ओके. चलो अभी नाउ वी विल स्टडी द टीएस ऑफ द डाइकॉट रूट. थोड़ा ध्यान दो इधर. ठीक है. सो नाउ दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकॉट रूट. आई एम गोइंग टू टेक अ क्रॉस सेक्शन. जैसे इसका क्रॉस सेक्शन लेता हूं एंड व्हेन आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग अंडर द माइक्रोस्कोप what exactly am I supposed to or I will observe. तो ये ऐसा दिखेगा आपको. ठीक है. टीएस ऑफ द डाइकॉट रूट में आपको ये स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा. अब ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, कैसा कैसा टिश्यूज होता है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. टीएस ऑफ डाइकॉट रूट लेके फिर हम लोग रुक जाते हैं. 15 मिनट बाकी है. या नाउ अभी जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, वॉट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी, इट विल ऑल बी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. मतलब बाहर से शुरुआत करनी है तो सबसे बाहर क्या रहेगा? एपिडर्मिस. वेरी गुड. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पहले होगा, फिर उसके बाद आएगा ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू. बराबर है. डिपेंड्स ऑन वेदर द वैस्कुलर टिश्यू कहां पे कौन से पोजीशन में, ग्राउंड टिश्यू कौन से पोजीशन में. ओके. सो लेट अस स्टडी फ्रॉम आउटसाइड. तो पार्ट 1 सबसे पहले. नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज नोन एज द एपिडर्मिस. अभी एपिडर्मिस के ऊपर ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं. व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स? Root hairs. लवली. रूट हेयर्स. क्योंकि हम लोग रूट की बात कर रहे हैं और उसमें से ये यूनिसेल्युलर है. So these epidermal cells here are known as what? Epiblema. And this particular epiblema will have the presence of root hair. ये epiblema is a type of epidermal cell. Okay, epidermal cell of which tissue we are studying here? कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? हेलो, कौन सा टीएस है ये? रूट. कौन सा? मोनोकॉट की डाइकॉट? Dicot. वेरी गुड. तो ये डाइकॉट रूट में दिस सेल इज नोन एज द एपिब्लेमा व्हिच इज अ टाइप ऑफ एपिडर्मल सेल, आल्सो नोन एज द पिलीफेरस लेयर. ओके. इसको रहेगा रूट एंड रूट हेयर्स आर बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. फिर उसके बाद थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो वी आर गोइंग टू सी दिस मल्टीपल लेयर्स ऑफ द सेल. दिस एंटायर मल्टीपल लेयर ऑफ सेल इज नोन एज द कॉर्टेक्स और कॉर्टिकल सेल्स. ठीक है. तो ये पूरा कॉर्टेक्स हो गया.
और कॉर्टेक्स और एपिब्लेमा के बीच में वी आर गोइंग टू हैव अ क्यूटिनाइज्ड आउटर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। क्यूटिनाइज्ड मतलब क्या, थोड़ा सा वैक्सी, मतलब इट्स गोइंग टू हैव अ स्टिकी और वैक्सी लाइनिंग। तो मतलब वो बेसिकली टफनेस या फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगा। सो दिस इज नोन एज एक्सोडर्मिस। आउटसाइड है ना एक्सो, इसके लिए उसको बोला गया है एक्सोडर्मिस। दिस इज एपिडर्मिस कॉल्ड एज एपिब्लेमा, दिस वन इज रेड कलर का जो दिख रहा है वो एक्सोडर्मिस, और उसके नीचे रहेगा कॉर्टेक्स, राइट। So cortical cells are known to store the water and starch as a food, right? अच्छा, अभी कॉर्टेक्स के नीचे फिर और एक इंपॉर्टेंट लाइनिंग आएगा। Now this lining is important. Now these cells are known as endodermis. लेकिन एंडोडर्मिस के बीच में ना हम लोगों ने ब्लैक कलर का कुछ तो भी निकाला है। दैट इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड द थिकनिंग ऑफ द सेल्स। मतलब यहाँ पे बीच में द सेल वॉल इज थिकन्ड एंड इट बिकम्स बैरल शेप्ड। बैरल पता है आपको, बड़ा सा पेट्रोल का टैंक ऐसा बैरल रहता है, तो उसकी तरह ही दिखना चालू हो जाता है ये सेल्स, बिकॉज दे हैव अ थिक सेल वॉल। सो रेडियल वॉल्स विच आर मेड अप ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप which is a thickening of the cell wall. तो उससे बनता है कैस्पेरियन स्ट्रिप, एंड दिस कैस्पेरियन स्ट्रिप हैज द थिकनिंग ऑफ सबेरिन और सुबेरिन। इफ रिमेंबर, लिविंग सेल रहेगा तो लिविंग सेल के सेल वॉल का रहता है सेल्यूलोज या फिर पेक्टिन। अगर सेल डेड रहेगा, जो हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम में देखा, तो उसमें क्या रहता है, लिग्निन। और यहाँ पे ये बैरल शेप्ड सेल्स भी कैसा है, ऑलमोस्ट लाइक अ डेड सेल्स, and these cells will have their thickening called as the suberin. Okay, इसको हम लोग बोलते हैं suberin, and this is useful for of course these are basically बीच में ये वाला जो cells है ना, these are called as the passage cells. करेक्ट। तो ये ग्रीन कलर का जो सेल्स हमने निकाला है, दैट्स कॉल्ड एज द सबेरिन और सबराइज्ड सेल, which are going to form the Casparian strip, which provides toughness और hardness और structural stability to the roots. एंड उसके बीच बीच में रहेगा पैसेज। पैसेज सेल का मतलब क्या आता है, पैसेज मतलब क्या, इट इज अलाउिंग सर्टन सब्सटेंसेस टू एंटर इन। मतलब वाटर विल नॉट मूव फ्रॉम दिस, यहां से पानी जाएगा नहीं, पानी इधर से जाएगा और इधर से जाएगा, क्योंकि वाटर इज गेटिंग, और रादर यहां से नीचे आ रहा है ना, तो पानी इधर से नीचे आएगा। सॉरी, उल्टा निकाल रहा हूं मैं, लेकिन यहां से पानी आता नहीं है। So water will be transported to the further tissues through passage cells. समझ रहा है? Sir, here the passage cells are only those barrel shaped cells. नहीं, ये वाले बीच वाले ग्रीन कलर के, ये पूरा का क्या है, ये पूरा जो लाइनिंग है सेल का, दिस इज व्हाट, Endodermis. वेरी गुड। ये एंडोडर्मिस में कुछ सेल्स बैरल शेप्ड हो जाते हैं। Okay, so the barrel shaped cells and passage cells are different. डिफरेंट, क्योंकि पैसेज सेल्स में देखो ना, सेल वॉल इज नॉट थिकन्ड। Yes, sir. Cortex is a type of tissue, Pragya. Okay, cortex is a type of tissue which is generally found under the epidermis. Passage cells will not have the suberin, Aditya. इसके लिए आप देखो ना, पैसेज सेल को मैंने कहीं पे भी यहाँ पे डायग्राम में हम लोगों ने निकाला नहीं है ना, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर। या So यस, can we say that they control what should enter the means what should enter down? बेसिकली पैसेज, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है ना, वो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है रूट्स को, ताकि रूट्स का डैमेज ना हो, बिकॉज इट इज ग्रोइंग इन द सॉइल, राइट। Yes, sir. लेकिन सॉइल के अंदर होने के बाद रूट है, इसने जो पानी को एब्जॉर्ब किया है, तो ये एक्सोडर्मिस से चला गया कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे सेल लाइनिंग से आया, लेकिन ये रूट है, ये पानी को अभी अंदर जाना पड़ेगा ना, इट हैज टू रीच टू द जाइलम, राइट। Yes, sir. तो जाएगा कहां से, तो दिस इज नॉट गोइंग टू अलाउ, क्योंकि इसका जो सेल लाइनिंग ही बदल गया, सबेरिन हो गया, सो इम्परमिएबल हो जाता है, तो यहां से पानी आना चालू हो जाता है फ्रॉम द पैसेज सेल्स। Yes, sir. Got it. ठीक है, और वहीं थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो अंदर की तरफ आपको ये पूरा ऐसा लाइनिंग मिलेगा। कहाँ, पैसेज सेल्स या फिर हमारे जो सबराइज सेल्स है ना, उसके नीचे ही दिस लाइनिंग इज नोन एज सिंगल पेरेनकाइमेटस सेल्स का लाइनिंग, कॉल्ड एज पेरीसाइकल, पेरी मीनिंग अराउंड,
ठीक है, तो ऐसे फ्लैटेंड सेल्स बन जाते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द पेरेनकाइमेटस सेल्स, कॉल्ड एज द पेरीसाइकल। पेरीसाइकल के अंदर, नाउ पेरीसाइकल इज गोइंग टू सराउंड द स्टील, ठीक है, मतलब पेरीसाइकल के अंदर क्या है, पेरीसाइकल के अंदर स्टील है। सो व्हाट इज स्टील? सो स्टील बेसिकली विल बी मेड अप ऑफ अगेन द वैस्कुलर बंडल्स। डू यू रिमेम्बर जाइलम में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम ऐसे दो पढ़े थे हम लोगों ने? यस, गुड। सो दिस इज नोन एज द मेटाजाइलम, और यहां पे बाहर की तरफ रहेगा प्रोटोजाइलम। मतलब कैन आई से दैट द प्रोटोजाइलम इज आउटसाइड एंड मेटाजाइलम इज इनसाइड? करेक्ट। एंड एज द प्रोटोजाइलम इज आउटसाइड and metaxylem is inside, therefore this condition is known as exarch arrangement. Exa meaning outside. What is outside? Protoxylem. What is inside? Metaxylem. So depending upon the position of the protoxylem, the name is given as exarch. यहां तक ठीक? Exo meaning outside, इसके लिए exarch बोला गया उसको। हेलो, हाँ। Yes. अच्छा, अगर प्रोटोजाइलम अंदर रहेगा और मेटाजाइलम बाहर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नाम आप लॉजिक यूज करो। एक्सो मीनिंग आउटसाइड, इसके लिए एक्सार्च। तो अगर प्रोटोजाइलम इनसाइड रहेगा तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड, फैंटास्टिक गौरव, एंडार्च। इट इज नोन एज एंडार्च, बराबर है। एंडो मीनिंग इनसाइड, करेक्ट अमन, तो इसके लिए एंडार्च बोलेंगे। इज इट क्लियर? So dicot stem में the arrangement of the xylem is exarch arrangement, ठीक है। So ये हम लोगों ने already पढ़ा हुआ है। And then this is basically radial vascular bundles. So xylem is arranged at a different radius and phloem is arranged at a different radius, correct? So the rest of the cells, बाकी के बचे हुए cells जो रहते हैं, they will all present around the vascular bundles and they are all parenchymatous in nature. तो ये सारे parenchymatous cells हैं, ठीक? Is it clear? Yes, sir. So vascular bundle is radial vascular bundle. All the phloem and xylem are arranged at a different radii, and the xylem shows exarch arrangement because protoxylem is outside and metaxylem is inside. So this is known as the connective tissue. ठीक है, और अदर सॉरी, दिस इज ऑल कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑल्सो एज ऑल्सो कॉल्ड एज द कंजंक्टिव टिश्यू which is found between the xylem and phloem. इसके बीच में जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, that is known as connective tissue और conjunctive tissue, ठीक है, जो जनरली पेरेनकाइमेटस होता है, मतलब वो स्टोरेज का काम करेगा, और उसके बीच में छोटा सा एक रीजन आएगा, उसको बोलते हैं पिथ। So the central part of the steel is, if present, is very small, called as the pith. जनरली होता ही नहीं है, अगर रहेगा तो एकदम छोटा रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पिथ, PITH। जो भी अगेन किससे बनता है, दैट इज ऑल्सो फॉर्म बाय द पेरेनकाइमेटस सेल्स। ओके, सो ये पूरा टिश्यू का क्रॉस सेक्शन ऐसे मिलेगा। अभी दोनों को अगर एक साथ करते हैं, इफ वी लाइक यू नो मैच देम टुगेदर, आपके बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में आप देखो तो आपको डायग्राम दिखेगा, टीएस ऑफ द डाइकॉट रूट। तो सबसे बाहर ये कौन सा लाइनिंग है, फटाफट बोलो? एपिब्लेमा। एपिब्लेमा। एपिब्लेमा को ये दो क्या है? रूट है। वेरी गुड। उसके नीचे कौन है? Exodermis. लवली, एक्सोडर्मिस। एक्सोडर्मिस के नीचे क्या है? Cortex. लवली, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर फिर क्या आता है? Endodermis. Yes, barrel shaped cells, that's called as endodermis. Endodermis will show suberized cell, और उसके साथ आएगा पैसेज सेल्स, करेक्ट? Yes, sir. गुड। और इसके अंदर फिर क्या रहेगा? एंडोडर्मिस के अंदर क्या रहेगा, फटाफट बोलो? लाइनिंग ऑफ द फ्लैट पेरेनकाइमेटस सेल नोन एज पेरीसाइकल। फिर उसके बाद आएगा प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के बाद आएगा मेटाजाइलम, फिर आएगा फ्लोएम, और फिर आएगा कंजंक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। समझा? यस सर। आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है डायग्राम, एग्जैक्टली ऐसे कैसे ही रहेगा, बराबर? चेक करो, एनसीईआरटी आपके बाजू बाजू में रहेगा। तो देयर इज स्मॉल पिथ, सो द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ xylem and phloem
ठीक है, which is always equal to steel, maybe on that basis, मतलब xylem और phloem कितना है उसके बेसिस पे the steel can be right from diarch to hexarch. Di meaning 2, hexa meaning 6. तो यहाँ पे कितने xylem और phloem है? How many xylem and phloem are present here? 4. 4. Very good. तो 4 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? Quadrach. Di, tri and Tetra. very good. So it is known as tetrarch steel. समझा? So either it's going to be diarch, triarch, tetrarch, then pentarch and hexarch. 6 से ज्यादा रहेगा तो Polyarch. अरे lovely. So it will be known as polyarch. मस्त आंसर कर रहे हैं आज तुम लोग. ठीक है, so it is called as the polyarch. Clear? हेलो भाई लोग और उनकी बहन लोग, समझा क्या सबको? नंबर घटते घटते हो गया है लेस, -20. 20 बच्चे गायब मीटिंग में से, है ना? जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, चलो डन. सो दिस हियर वी आर गोइंग टू स्टॉप. आगे का हम लोग पार्ट नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. ओके, क्योंकि फिर बनना पड़ना है टीएस ऑफ मोनोकॉट रूट, तो हम लोग अभी मंगलवार को पढ़ेंगे. ठीक है, चलो सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes.